Morning, everyone. Good to see you all again. सब बखैर अमेरिका में से। और बहुत मुझे खुशी है कि मैं आप सबको एक बार फिर देख रहा हूँ। So today we're going to be talking about Messianic Judaism. तो आज हम बात करेंगे मेसियानिक यहूदियत के मुतालिक। Brother Shalem has let me know that some of you know, or maybe you yourselves practice Messianic Judaism, or you know some people who practice Messianic Judaism. भाई शालीम ने मुझे इस बात के मुतालिक मुझे रोशनास किया कि बहुत से लोग पाकिस्तान में मेसियानिक ज्यूज हैं। So this is a little bit different than what we've been talking about the past couple of weeks, because Messianic Judaism, we'd say these are brothers and sisters in Christ. ये पिछले जो दो कुछ गुज़िश्ता हफ्तों में हमने सीखा है, ये उससे मुख्तलिफ होगा क्योंकि मसीहानिक यहूदी बहनें और भाई हम एक हैं। We've talked about Mormonism and Jehovah's Witnesses the past couple of weeks. And even though they call themselves Christians, we've talked about and shown evidence that they are not Christians based off what the Bible says. मॉर्मनिज्म और इसी तरह से हमने यहोवा के गवाहों के मुतालिक देखा कि वो ये कहते तो हैं कि वो मसीही हैं, मगर हमने इस बात को ये सीखा समझा और जाना कि वो मसीही नहीं है। But we will see once we talk about Messianic Jews that this is very much within the fold, like we're together on this. और लेकिन जब हम इसके मुतालिक देखेंगे कि मसीहानिक जूस क्या हैं, हम देखेंगे कि वो हमारे साथ कितनी मुताबिकत रखते हैं। A main difference that we'll see, though, is obviously they call themselves Jews and they retain some of those, if not all, of the Jewish practices, and we'll talk about that. और कुछ जो खास तौर पर चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे वो अपने आप को यहूदी कहते हैं, और फिर कई रसूमात जिनका जिनको वो करते हैं, हमें नजर आता है कि वो यहूदी रसूमात हैं। So, kind of the structure of how this lecture is going to go, I'm going to have cover some miscellaneous questions, some general questions, and then we'll talk about the origins, kind of Messianic Judaism in the Old Testament and the New Testament. कई सवाल, सबसे पहला जो मैं काम आज आपके साथ करूंगा वो ये है कि कई सवालात जो इनके खिलाफ या इनके लिए उठाए जाते हैं उनको हम देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ये ईमान रखते क्या हैं और प्रैक्टिस करते क्या हैं। Then we'll talk about Messianic beliefs. और हम इनके अकीदे, इनके ईमान के मुतालिक भी सीखेंगे, We'll talk about some of their religious practices. उनके रसूमात के मुतालिक भी। And then we'll close with some critics of Messianic Judaism, and then I'll give you a closing remark. तो कुछ तनकीदें जो या तनाकीद जो इनके खिलाफ हो सकती हैं, और फिर हम उनके मुतालिक से हम इस लेक्चर का इख्तिताम भी करेंगे। So we'll begin with this. What is a Messianic Jew? पहली जो बात है कि एक मसीहानिक यहूदियत क्या है। Technically, we could say that all Jews are Messianic. पर टेक्निकली देखा जाए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जितने भी यहूदी हैं वो मसीहानिक ही हैं। Because all Jews are waiting for the Messiah. उनके सारे यहूदी मसीह के आने के ही मुंतजर हैं। But for Messianic Jews, they believe the Messiah has come. They believe it is Jesus. मगर ये मसीहानिक यहूदी इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह आ चुका है और वो यीशु है। So, what is meant by the title Messiah? तो ये जो लफ्ज मसीहा है, इसका मतलब क्या है। And Shalem said not to do this, but I'm only making a passing reference. But when we talk about Messiah, I mean, obviously, y'all live in a Muslim country. We can talk about how people recognize Jesus as the Messiah, but it's never really defined. Well, what is the Messiah? What is the expectation of a Messiah? शालीम भाई ने तो मुझे मना किया था ये बात नहीं करनी, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक इस्लामी या मुस्लिम वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हमें सवाल किया जा सकता है। वो कहते भी हम मसीह को मानते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि मसीह का मतलब क्या है। So, at least in this, we're going to be able to understand. And when I'm talking about what is a Messiah, we're answering what did the Jews just before Jesus' time and during Jesus' time, what were they expecting about a Messiah? मसीह की जब हम इसकी तारीफ बयान करते हैं तो हमें ये चीज़ सामने रखनी है कि मसीह के आने से पहले, मसीह के आने के जब वो आए, और उसके आने के बाद वो क्या मसीह का तस्वुर अपने जहनों में रखते हैं।
So, for one, it's looking for the restoration of the Davidic kingdom and its glory. सबसे पहली बात ये आपने याद रखनी है, जब वो मसीह का जिक्र करते हैं, वो दाऊद के तख्त की दोबारा से वापसी या दोबारा से नमूदार होने के मुतल्लिक ईमान रखते हैं। And the reason they're waiting for this is because it says so in the Bible. In 2 Samuel 7, God makes the promise to David that you will have someone to reign on your throne forever. क्योंकि खुदा ने दूसरे शमूएल 7वें बाब में इसके मुतालिक पेशन गोई की थी, इसके मुतालिक उन्होंने वादा किया कि तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा, और ये वादा दाऊद से किया गया था। They believed that the Messiah would gather in all the Jews that are scattered around the world and bring them back into Israel. क्योंकि खुदा ने वादा किया कि वो सब यहूदियों को जो पूरी दुनिया में फैले हैं, खिलरे हुए हैं, उनको दोबारा से यरूशलेम में लेकर आएगा। They believed that the Messiah would restore the laws of the Torah, including the sacrificial worship. और उनका ये ईमान था कि वो कवानीन जो लोग भूल चुके हैं और हैकल के रसूमात और हैकल की तकदीस तकद्दुस को भूल चुके हैं, वो उनको दोबारा से उनके पास लेकर आएगा। They believed the Messiah would compel the Jews to walk in line with the Torah. और वो यहूदियों को उनके दिलों को तब्दील करेगा कि वो खुदावंद के हुक्मों पर, खुदावंद की शरीयत पर चलने वाले बने, That they would restore the temple. और खास तौर पर हैकल की बहाली, And then usher in a new world order where Israel is the leading authority in the globe. और एक नया दुनियावी निज़ाम को वो इस्टेब्लिश करेंगे, मुल्की निज़ाम को वो बनाएंगे, और उन सब का सरदार इसराइल होगा। So for some, again, thinking just before the time of Jesus, they're seeing that, okay, this is potentially a political figure, the Messiah. जब मसीह यीशु के आने से पहले यहूदियों के जहनों में तस्वुर मसीह ये था कि ये जो मसीह आएगा ये एक कानून परस्त शख्स होगा या कानूनी बादशाह होगा। But also looking at a passage like Isaiah 53, the suffering servant, they saw that maybe this Messiah would have a priestly role, kind of a suffering for the nation role. लेकिन जब यसाया 53 बाब देखते हैं तो इसमें ये भी उजागर होता है कि शायद ये मसीहा कहानत का काम करने आए, जो कि लोगों के लिए दुख से है। So therefore, some people thought maybe there's two Messiahs, a political figure and a priestly figure. तो कुछ लोगों ने सोच लिया कि हो सकता है दो मसीह हो, एक कानून ते दूसरा काहिन होए। And we'll talk a little bit more about that in just a minute. और मैं इसके मुतालिक थोड़ा सा और मैं थोड़ी देर तक मैं आपसे बात करूंगा। But for Messianic Jews, they believe Jesus, who they call Yeshua, which in Hebrew means salvation. और लेकिन यहूदियों के लिए जो यीशु मसीह है जिसे वो यशुआ बोलते हैं, उनके लिए मेसियानिक ज्यूज ये तस्वर रखते हैं। So they believe that Yeshua is the Messiah. वो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि यीशु वाकई में मसीह है। Yeah, I'm gonna pass over that. All right, so we're kind of tackling the Messianic part. Now here's a question: what is a Jew? अच्छा, अभी हमने देख लिया कि ये मसीह ये है या मसीहा के मुतालिक सवालात को देख लिया। अब बारी आती है यहूदी कौन है। It can be a little bit confusing. It's like, is this a religious term? Is this an ethnic term? Is it a both? So what is a Jew? अब ये हम थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यहूदी की जब बात करते हैं, यहूदी कौन है? क्या ये कोई मजहबी टर्म है या मजहबी इस्तिलाह है, या ये कोई नस्ल की इस्तिलाह है? So originally, a Jew was someone who lived in the kingdom of Judea. दर हकीकत इसकी सादी एग्जांपल या सादे तौर पे समझना चाहें तो यहूदी वो है जो यहूदिया के इलाका में रहने वाला था। So in Hebrew, it's Yehudi. और अब्रानी में यहूदी सेम एज उर्दू। Okay. So then it goes into Greek and it goes into Euodias. और जब हम ग्रीक में जाते हैं तो वो यूदायास हो जाता है। And then Latin, it goes into Judaios. लैटिन में वो जुडायास हो जाता है। And then into English, Jew.
और फिर अंग्रेजी में इसे जू बोला जाता है। So if you have it in Urdu that is यहूदी। Yehudi, you see it. It's right there. It's someone who lived in the kingdom of Judah. तो यहूदी वो हमारे उर्दू बाइबल में भी हम इसे इन्हें यहूदी कहते हैं, और यहूदी वो है जो यहूदिया के रहने वाले लोग। Then it becomes a question, can anyone become a Jew? फिर दूसरा सवाल ये, क्या कोई भी यहूदी बन सकता था? What Orthodox Jews would say is this. जो इनके ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, यानी पुराने और शरीयत पसंद यहूदी, वो उनका जवाब ये कुछ ऐसा होगा, If your mother is Jewish, then you're Jewish. अगर आपकी माँ यहूदी है तो फिर आप यहूदी हो। Or if you're converted through the Orthodox authorities, then you can become a Jew. या अगर आपको कन्वर्ट हुए हो और जो वहाँ की काबीना है वो आपको प्रूव कर दे, तब आप यहूदी हो सकते हो। In recent times in the West, probably for a desire to make it a little more egalitarian, they've said, well, if your father's Jewish or you have a grandparent that's Jewish, you're Jewish too. वेस्ट में जब देखते हैं तो वहां पर इसको संभालने के लिए लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर आपका बाप यहूदी है तो आप यहूदी हो। For Messianic Jews, they look at the Bible and they see that the genealogies go through the father. So they say, if your father's Jewish, you're Jewish. मसीहानिक यहूदी ये कहते हैं, क्योंकि जब वो बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में जो नस्ब नामे मौजूद हैं वो है ही मर्द के ताल्लुक से, तो इसलिए कहते हैं अगर आपका बाप यहूदी है तो आप यहूदी हो। So now we're going to our next session and look at what are the foundations of Messianic Judaism from the Old Testament. अगले हम सेक्शन की तरफ चलेंगे। अब हम देखेंगे कि पुराने अहदनामे में मसीहानिक ज्यूज या मसीहानिक यहूदियों के मुतालिक क्या हमें बातें सीखने को मिलती हैं। Now, for some of you, I'm just going to cite these Old Testament passages. I'm not going to read them. और आप लोगों के लिए मैं इन हवाला जात को सिर्फ इनका हवाला नंबर बताऊंगा, मैं रीड नहीं करूंगा, लेकिन आप इनके नोट्स बना लें, आप इनको लिख लें। But I would say I'll try to read them slowly in case you want to write them down. मैं आहिस्ते से धीमे धीमे आपको ये हवाला जात लिखवा दूंगा ताकि आप लिख लें। Because it's also edifying for our souls as believers in Jesus to say, okay, this was prophesied. क्योंकि ये हमारे लिए भी, हमारी रूहानी नशोनुमा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे लिए भी लिखा गया। So Old Testament Messianic prophecies. तो पुराने दामे की में से मसीहानिक जो नबूवतें हैं उनको देखेंगे अभी हम। Just so you know, Jews, including Messianic Jews, call the Old Testament the Tanakh. पुराने अहदनामे को यहूदी और मसीहानिक यहूदी उसको तनाख कहते हैं। And for those of you who are interested, where do they get that word from? और वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि ये लफ्ज उनके पास आया कहाँ से है, It comes from 3 Hebrew letters, Tet, Nun, and Kaf. और ये 3 अब्रानी के इसके कहते हैं कि लेटर से आता है, तेत, नून एंड काफ। अब उर्दू में ते, नून और काफ। Yeah, there you go. It's same. So what it stands for is the Torah, which are the 5 books of Moses. So तेत से यानी ता से तौरात, The Nun is Nevi'im, that's the prophets. और नून से नवेईम जिसे हम नबी कहते हैं, And the Kaf is Ketuvim, that is the writings. और काफ से है कतवीम जो कि सहाइफ या लिखाई है, उसको हम कहते हैं। So you'd have like the Psalms and Proverbs and Daniel, that's to be in the Ketuvim. और कतवीम में हमें ये ज़बूर, अयूब और जो विजडम एंड पोइट्री यानी जो शायरी की और हिकमती किताबें वो हमें नजर आती हैं इसमें। So that's just a little fun fact for you. और ये सिर्फ आपके लिए, आपको हंसाने के लिए मैंने बताया। All right, so here are some messianic prophecies from the Tanakh. और तनाख में से कुछ ये यहूदी या मसीहाई नबूवतें ये हैं। So the Messiah would be the seed of the woman of Eve, Genesis 3:15. पैदाइश 3:15 के मुताबिक मसीहा औरत की नस्ल से होगा। The Messiah would be the descendant of Abraham. मसीह दरवाजा बंद कर। मसीह अब्राहम की मम्मी के कमरे नस्ल से होगा। That comes from Genesis 12:3 and Genesis 22:18. ये आपको
पैदाइशी किताब 12वां बाब उसकी 3री आयत और 22वें बाब 22:18. 22वें बाब की 18वीं आयत में मिलेगा। The Messiah would come from the tribe of Judah. मसीह यहूदा के कबीला से आएगा। That is Genesis 49:10. ये आपको मिलेगा पैदाइशी किताब 49वां बाब उसकी 10वीं आयत। He would be a prophet like Moses. वो मूसा की तरह से एक नबी होगा। Deuteronomy 18:15-18. अस्तिस्ना 18 15 से 18। I'll resist the connection to Islam right there. Oh, please, Okay. please. I know you're an expert. The Messiah will be born of a virgin. मसीह कंवारी से पैदा होगा। That's Isaiah 7:14. ये यसाया 7:14। He will be a descendant of Jesse, of David. वो यसी के तने से होगा या यसी की नस्ल से होगा, दाऊद की नस्ल से होगा। That's Isaiah 11:1 यसाया 11वां बाब उसकी पहली आयत and Jeremiah 23:5-6. यर्मिया 23वां बाब 5 से 6। The Messiah will be born in Bethlehem. मसीह की पैदाइश बैतलहम में होगी। Micah 5:2. मीका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत। The Messiah will enter Jerusalem on a donkey. मसीह यरूशलेम में गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। Zechariah 9:9. जिक्रिया 9:9। The Messiah will be betrayed for 30 pieces of silver. मसीह को 30 दिनार में बेचा जाएगा। That's Zechariah 11:12-13. जिक्रिया 11वां बाब 11 से 13वीं आयत तक। He will suffer for sins. वो गुनाहों के लिए हलाक किया जाएगा। That's Isaiah 53:4-6. यसाया 53 बाब 4 से 6। When he is being accused, he will be silent. He's not going to defend himself. जब उसे मारा जाएगा, जब उस पर उसको लान तान किया जाएगा, वो चुप रहेगा। That's Isaiah 53:7. यसाया 53 बाब उसकी 7वीं आयत। These next three come from Psalm 22. अब ये जो अगली 3 पेशन गोइयां हैं या नबूवतें हैं, ये ज़बूर 22 में से आती हैं। The Messiah will be pierced in his arms and his legs, or his hands and his feet. और मसीह को उसकी कलाइयों पर और पाँव में वहां पर कील लगाए जाएंगे, छेदा जाएगा। He'll be mocked and insulted. उसके ऊपर सियासत की जाएगी और उसका मजाहका उड़ाया जाएगा। And people will cast lots for his clothing. और उसके कपड़ों पर कुरा डाला जाएगा। They say not one of his bones will be broken though. याद रखें कि उसकी एक भी हड्डी ना टूटेगी। Psalm 34:20. ये ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत में लिखा है। The Messiah will be buried with the rich. वो अमीरों के साथ दफनाया जाएगा। That's Isaiah 53:9. यसाया 53 बाब उसकी 9वीं आयत। The Messiah will be resurrected. मसीह जी उठेगा। Psalm 16:10. ज़बूर 16:10। And he will sit at God's right hand. और वो खुदा के दाहिने हाथ बैठेगा। Psalm 110:1. ज़बूर 1:10। And here's actually one more. The anointed, the Christ, the Messiah, he will be killed before 70 AD. और एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो मसीह है, ये 70 ईस्वी से पहले मार डाला जाएगा। That's Daniel 9:25-26. दानियल की किताब 9वें बाब 26 से 28 तक। So that's some of the Old Testament prophecies about the Messiah. ये कुछ पुराने अहदनामे की नबूवतें हैं जो मसीह के मुतालिक हैं। But I also want to tell you just to briefly, the period before Jesus, about 300 years to 100 years before Jesus, there was a lot of messianic anticipation. याद रखें कि मसीह के आने से कबल 300 से 100 कबल अज़ मसीह के दरमियान मसीह का बेतहाशा इंतजार किया गया। In 1948, some archaeologists found some documents they called the Dead Sea Scrolls. 1948 में कुछ इल्मे इलाही के माहिरीन ने और कुछ लोगों ने डेड सी स्क्रोल्स को वहां पर पाया। In these Dead Sea Scrolls, you can find at least pieces of every book in the Old Testament.
ये इन डेड सी स्क्रोल्स में आपको पुराने अहदनामे की किताबों के नुस्खा जात मिल जाते हैं, but you also find a lot of writings about the Messiah. मगर उनके अलावा पुराने अहदनामे की किताबों के अलावा मसीह के मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया जो उनके पास मौजूद था। They're not biblical, but they seem pretty prophetic. वो बाइबली तो नहीं थे लेकिन नबूवती नजर आते हैं। For instance, I was sitting in on a presentation recently here at Southern, मैं पिछले दिनों मिसाल के तौर पर एक प्रेजेंटेशन दे रहा था यहाँ पर अपने सेमिनारी सदर में बैठे हुए, and a gentleman who's doing his PhD in Old Testament is studying some of the scrolls, some of the Dead Sea Scrolls. और एक भाई है, दोस्त है यहाँ पे जो पुराने नामे में अपनी पीएचडी कर रहा है, वो इन स्क्रोल्स को, इन उसका जात को, तुम्हारों को स्टडी कर रहा था। And this is just one example of some of the content from the Dead Sea Scrolls. और ये एक मिसाल है जो भी मैं देने लगा हूँ उन तुम्हारों में से। So this is about 200 years before Jesus came. ये 2000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 2000 साल पहले की बात है। And this paper that he was reading from predicts that the Messiah will be divine. और वो जो पेपर में उन नबूवतों के मुतालिक जो उन तमार में मिला, वो ये कहता है कि मसीह इलाही होगा, He will perform miracles, वो बहुत से मौजज़ात करेगा, and he will be resurrected. और फिर वो जी उठेगा। And you have many parchments or many pieces, many documents in the Dead Sea Scrolls that speak about this Messiah being some divine, some just kind of superhuman, some performing miracles. So they're anticipating the Messiah coming. क्योंकि वो सब के सब उस वक्त मसीह के आने के मुंतजर थे, तो वो फर्क तौर से मसीह को देख रहे थे। कुछ को वो बिल्कुल इलाही कह रहे थे, कुछ को सिर्फ इंसान कहते थे, कुछ को मौजज़ात दिखाने वाला कहते थे। So you also need to understand, just before Jesus' time and even during Jesus' time, there was probably around 70 people who were saying that they were the Messiah. मसीह के आने से पहले कम से कम एटलीस्ट 70 ऐसे लोग थे जो कहते थे कि वो मसीह है। So there's a reason that the Apostle John says we need to test the spirits to see if they're true. इसलिए यूहन्ना रसूल कहता है कि हमने रूह का इम्तियाज करना है ताकि हम ये जान सकें कि क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। So now let's look at the origins of Messianic Judaism in the New Testament. अब हम नए अहदनामे में इस मसीहानिक यहूदियों की बुनियाद को देखेंगे। So one thing we need to remember is that all of the disciples and the earliest followers, they're all Jewish. याद रखें कि यीशु मसीह के हवारी और जो इब्तदाई कलीसिया थी वो यहूदी ही थी। So what you see is you have Messianic Jews from the jump. अब आपको नजर आ रहा है कि ये मसीहानिक यहूदी तो शुरू से वहां पे मौजूद थे। So now I'm just going to list you some of those New Testament fulfillments of the Old Testament, so therefore you can go back and read through yourself. मैं कुछ नए अहदनामे में जो पुराने अहदनामे की नबूवतों का पूरा होना है वो कुछ आपको मैं बताऊंगा। But these are certainly passages that Messianic Jews will go to and say, okay, yeah, this is our Messiah. क्योंकि ये वो हवाला जात हैं जिनको ये मसीहानिक यहूदी कहेंगे कि ये देखो जी ये हवाला जाते हैं इसलिए हम मसीहानिक यहूदी हैं। So when we're talking about the Messiah will be the seed of the woman, Galatians 4:4 and Hebrews 2:14. अब्रानियों 2:14, गलतियों 4:4 के मसीह कंवारी या औरत की नस्ल से होगा। The Messiah is a descendant of Abraham, Matthew 1:1 and Galatians 3:16. गलतियों 3:16, मत्ती 1:1 के मुताबिक मसीह अब्राहम की नस्ल से होगा। The Messiah will come from the tribe of Judah, Luke 3:33, Hebrews 7:14. लूका के इंजील 3:33 के मुताबिक वो, कैन यू रिपीट दैट अगेन? So from the tribe of Judah. ओके, वो यहूदा के कबीला से आएगा। Be a prophet like Moses. वो मूसा की माने मूसा की तरह एक नबी होगा। Acts 3:22 and John 6:14. अमाल 3:23 और हमें ये हवाला मिल जाता है। Born of a virgin. वो कंवारी से पैदा होगा। Matthew 1:23. मत्ती 1:23। He's a descendant of Jesse and David. वो यसी और दाऊद की नस्ल से है। Matthew 1:6. मत्ती 1:6। Romans 15:12.
रोमियो 15 उसकी 12वीं आयत। Born in Bethlehem. बैतलहम में उसकी पैदाइश होगी। Matthew 2, 1 to 6. मत्ती दूसरा बाब 1 से 6 आयत। He will enter Jerusalem on a donkey. वो यरूशलेम में गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। John 12, 14 to 15. यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 14 से 16 तक। He'll be betrayed for 30 pieces of silver. वो 30 दिनार में बेचा जाएगा। Matthew 26, 15 and Matthew 27, 3 to 10. ओके, तो मत्ती 26वां बाब उसकी 15वीं आयत और मत्ती 27वां बाब उसकी 3री आयत से 10वीं आयत तक। When he's being accused, he's going to be silent. जब उसको मारा जाएगा, जब उस पर इल्जाम लगाया जाएगा, वो चुप रहेगा। Matthew 27, 12 to 14. मत्ती 27वां बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। He'll suffer for our sins. वो हमारे गुनाहों के लिए उसे हलाक किया जाएगा, तकलीफ पहुंचेगी। 1 Peter 2, 24 to 25. पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत से 25वीं आयत तक। He'll be pierced in his hands and in his feet. उसके हाथों और पैरों में कील ठोके जाएंगे। John 20, 25 to 27. यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 20 से 27वीं आयत तक। He'll be mocked and insulted. उस पर मजाक उड़ाया जाएगा और उस पर तमस्खरा उड़ाया जाएगा। Matthew 27, 39 to 43. ओके, तो मत्ती की इंजील 27वां बाब 29वीं आयत से 42वीं आयत तक। They will cast lots for his clothing. वो उसके बदन, उसके लिबास पर कुरा डालेंगे। John 19, 23 to 19, 23 to 24. यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 23 से 24 आयत तक। No one will break his bones. कोई भी उसकी हड्डी तोड़ ना पाएगा। John 19, 33 to 36. यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 33वीं आयत से 36वीं आयत तक। He'll be buried with the rich. वो अमीरों के साथ उसको दफनाया जाएगा। Matthew 27, 57 to 60. मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 57 आयत से लेकर आपको आगे इसमें टेक्स्ट में मिल जाएगा। He'll be resurrected. वो जी उठेगा। All of the Gospels. वो सारी गॉस्पेल्स में, सारी अनाजील में हमें मिलता है। And then Acts 2, 27 to 31. और अमाल की किताब 2 27 से लेकर 31वीं आयत तक। And then finally, he will sit at God's right hand. वो खुदावन के दाहिने हाथ बैठेगा। Hebrew 1, 3. अब्रानियों 1:3। Acts 7, 55 to 56. अमाल की किताब उसके 7वें बाब में आपको 57 से 56 में आपको मिल जाएगा। So some skeptics would say that, well, the Christians just later saw what happened. They went back and they wrote this all down. Is that possible? Sure. It just seems very unlikely that one man's going to fulfill all these things. But then we have to say that every New Testament writer is a liar. So it's, कुछ तंग नजर अफराद, कुछ तंग नजर लोग कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसा हुआ नहीं था। इन नए अहदनामे के लिखारियों ने बाद में जाकर इनको सब चीजों को लिख दिया, मनगढ़ंत कहानियां बना दी। कैसा मुमकिन है? ऐसा नहीं, वरना ऐसा अगर होता तो सारे के सारे झूठे हैं जो भी नया अहदनामा लिखा गया हमारे पास। but read those passages, one just for the building up of your own soul. ये इन हवालाजात को जो हमने पुराने अहदनामे में से देखे, नए अहदनामे में से देखे, इनको अपनी रूहानी नशोनुमा के लिए पढ़ें, समझें। But you'll see from Messianic Jews, they believe that the New Testament has ample evidence that Jesus is the fulfillment of the Old Testament. क्योंकि इन मसीहानिक यहूदियों के पास ये बड़ा प्रूफ है कि यीशु ही पुराने अहदनामे का मसीह है, जिसके मुतालिक पेशन गोइयां और नबूवतें की गई थी। All right, so here's just some Messianic beliefs. अब हम कुछ मसीहानिक यहूदियों के जो अकीदा है या ईमान है उसके मुतालिक सीखेंगे। As already mentioned, they believe Yahushua is the Messiah. वो ये इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ही मसीह है। They believe that he is clearly, as I just listed out, the fulfillment of all these Old Testament prophecies. अभी जैसे हमने पुराने अहदनामे के हवाले देखे, नए अहदनामे के हवाले देखे, वो इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि पुराने अहदनामे में जो पेशन गोई की गई वो नए अहदनामे में पूरी कर दी गई है। As I mentioned earlier, some expectations of the Messiah in the past, but also right now, will say, well, that the Messiah will usher in a new world order. He will spread the knowledge of the Torah around the globe, and that's not happened.
और बहुत हमें नजर आता है कि कई ऐसे भी नबूवतें हमें मिलते हैं कि वो जनाब जी पूरी दुनिया में अब तो रात की तालीम देगा, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आता कि दी। To which Messianic Jews push back and say, look around. और इसलिए वो फिर मसीहानिक यहूदी कहते हैं कि पीछे तो देख। Say, Jesus has certainly transformed the world. वो कहते हैं कि वाकई में यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। See, Christians and Messianic Jews, they believe the Old Testament is the Word of God. मसीही और मसीही यहूदी इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ही वाकई मसीह है। So, through people who believe in Jesus, they have actually spread all over the globe the knowledge of the Torah. तो वो जो मसीह पर ईमान रखते हैं पूरी दुनिया में उन्होंने तौरात की तालीम को पहुंचा दिया है, फैला दिया है। Certainly, to a degree, a new world order is in place. I mean, we have been shaped by the teaching of Judeo-Christian beliefs. और क्योंकि हमारे अकीदे की बुनियाद भी या हमारे क्योंकि कम्युनिटी अफेक्ट करती है, तो हम यहूदी और मसीही इनके दरमियान में ही रहते हैं। But they also say the rest of the fulfillment, the fact that sin will be gone, that will take place at the second coming. लेकिन वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि गुनाह का कफारा, गुनाह की कीमत वो मसीह के दूसरी आमद पर होगी। They believe Jesus is God. वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ही खुदा है। So if you remember last week, we talked about Jehovah's Witnesses. They say, yeah, Jesus came from God, but they don't believe in the incarnation because they don't believe Jesus is God. अब आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा, यहूदी मसीह में ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा है, मगर यहोवा के गवाह इस बात पर ईमान नहीं रखते कि यीशु खुदा है। वो कहते हैं नहीं, वो सिर्फ इंसान है। But Messianic Jews believe in the incarnation because they believe Jesus is God. वो कमारी से पैदाइश पर ईमान रखते हैं क्योंकि वो उनका ईमान है कि वो वाकई में आसमान से आया है। Like us, they believe the Tanakh, Old Testament and New Testament, is the inspired, infallible Word of God. वो हमारी तरह ही है कि जनाब पुराना नया नामा ये बाइख्तियार कलाम है खुदा का। They call what we say Trinity, they call tri-unity. They just think Trinity is a little too Gentile sounding. वो हम जो तस्लीस कहते हैं, अब मेरे पास उर्दू, we don't have like a specific term for, like we call Trinity just Trinity, but like tri-unity we don't have that. So let me come up with I something don't know how for they say it that. in Urdu then. Yeah. That's just how they said it in English. तो आई थिंक इसको इस तरह समझ लें कि वो तस्लीस का लफ्ज इस्तेमाल करने से थोड़ा घबराते हैं। तो वो क्या, आई थिंक ये वर्ड ठीक होगा, तस्लीस फील तौहीद। वो कहते हैं कि ये तीनों एक जगह पर जमा है, एक ही में। So when they speak about this, however you said it, three in one, they don't see it as an apologetic as much as an explanation. वो कहते हैं कि हम इसका दिफा नहीं कर रहे बल्कि हम इसकी वजाहत कर रहे हैं। For them, they believe the traditional view of God without the Messiah is incomplete. वो कहते हैं कि जो तारीखी तौर पर खुदा का तस्वुर है वो मसीह के बगैर अधूरा है। So for them, they believe their Jewishness is fulfilled now that they believe that Jesus, the Messiah, has come. वो ये कहते हैं कि हमारी अब जो ज्यूइशनेस है वो पाए तकमील तक पहुंची क्योंकि अब मसीह आ चुका है। सर, इज ट्रिनिटी एंड ट्रायूनिटी सेम? वही मैं बता रहा हूँ, या इट्स सेम। Yeah, it's just their term. वो टर्मिनोलॉजी फर्क है। Because again, Trinity to them is too Gentile. वो कहते हैं कि जो लफ्ज ट्रिनिटी है, तसलीस है, वो गैर अक़वाम इस्तेमाल करती हैं। So thus far, what we've covered, we'd say, well, we believe all that. So what's the difference between a Messianic Jew and a Christian? तो अब हमने देख लिया कि अच्छा जनाब जी वो बाइबल ते मान रखते ने, सारा कुछ वही है। फिर मसीहियां चे आप में और इन मसीहानिक यहूदियों में फर्क क्या है? Because they also believe that salvation comes through belief in God's word, accepting Jesus as your atonement for sin. क्योंकि उनका भी निजात का तस्वर यही है कि आप ईमान के खुदा के कलाम पर ईमान लाने के वसीला से, मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही निजात पाते हो। For them, it's embodying their Jewishness. उनके लिए दर हकीकत वो चाहते हैं कि आपकी तर्ज जिंदगी यहूदियों जैसी हो। And so one thing, they would distinguish a Messianic Jew from a Hebrew Christian. वो अपने आप को मसीहानिक यहूदी
के तौर पर अलग करेंगे अब्रानी मसीही के बिनिस्बत। A Hebrew Christian would be someone who is Jewish, they have a mother or father who's a Jew, but they've assimilated into Christianity. So they don't have any kind of Jewish heritage about them. अब्रानी मसीही इसलिए फर्क थोड़े नजर आएंगे कि उन्होंने मसीहियत का रुख अपना लिया, और यहूदी वाले ये यहूदी मसीहाने की यहूदियत को सामने रखते हैं। So now we're going to go into some of those practices that begin to distinguish a Messianic Jew from a Christian. Yeah. अब हम कुछ ऐसी रसूमात देखेंगे जो कि एक मसीही को यहूदी मसीह से फर्क बनाती है। If you want, you can bring up the slides now. या ओके, ये मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करने लगा हूँ। यस सर। Come down. So a lot of this is because they believe that since Jesus came, this is now a fulfillment. They can be a Jew to the full extent. So a lot of this is an expression of some of the Jewish observances like festivals. अब जब ये इस बात पे ईमान भी रखते हैं कि ये सब चीजें मसीह यीशु में पाए तकमील तक पहुंची हैं, तो ये इन रसूमात के वसीला से करते क्या हैं? So if you look at the bottom right picture, अगर अगर आप ये इस तस्वीर को देखें आप, that's the challah bread and some wine. ये यहाँ पर आपको रोटी नजर आ रही है, ब्रेड नजर आ रही है, और साथ ये शीरा नजर आ रहा है। So this is the Sabbath. और ये यहाँ पर वो सबत मना रहे हैं। So for them, if the Sabbath is a day of rest, for them they find their ultimate rest in Jesus, who is their Sabbath. तो अगर वो सबत के दिन आराम करते हैं, वो अपना सबत, अपना आराम मसीह यीशु में ढूंढते हैं। So this picture, the big picture, is a picture of a Passover feast. ये आपको बड़ी सी लंबी सी तस्वीर नजर आ रही है, ये फसह की ईद की तस्वीर है। So for them, Jesus is that blood of the lamb that now covers them, so God's wrath will pass over them. क्योंकि अब ये जब इस फसह की ईद को मनाते हैं, तो वो अपने ऊपर समझते हैं कि मसीह जो कि खुदा का बरा उसका लहू है, इसलिए अब जो फरिश्ते आएंगे उनको मार रहे, वो उनके ऊपर से चले जाएंगे। So during the Passover feast, they'll read from a prayer book. और फसह की ईद मनाते हुए वो एक दुआ की किताब में से कुछ रीड करेंगे, पढ़ेंगे। Jews, Orthodox Jews do the same thing, but Messianic Jews have a slightly different prayer book. याद रखें कि ये पढ़ने वाला हिसाब यहूदी भी करते थे, लेकिन मसीहानिक यहूदी थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। Throughout this prayer book of reading and the meal, they'll break this bread in the top right that's called matzah. ये जब वो दुआ कर रहे हैं उस किताब में से, तो वो सारी रोटी को इस तरह से तोड़ देंगे। So for them, in the middle of reading this prayer book, they will break the matzah and then they will hide it. और जब वो दुआ पढ़ रहे हैं उस किताब में से, तो वो उसको तोड़कर उस रोटी को छुपा देंगे। They believe that this ceremony, this particular Passover ceremony, began with the Jewish believers in Jesus in the first century. और वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये सारी चीजें, ये सारा कुछ, ये पहले सदी के जो यहूदी मसीह हैं उनकी वजह से आया। You can go to the next slide. अगली स्लाइड देखिएगा। They celebrate Hanukkah. वो हानिका की झोंपड़ियों की जो ईद है उसको भी ये मनाते हैं। This candle is called the menorah. इन कैंडल्स को, इन मोमबत्तियों को मनोरा कहा गया है। Here's a little history for you. थोड़ी सी इसकी तारीखी पस मंजर देखते हैं। Because you may be asking, why 8 candles? 8 मोमबत्तियां क्यों? Sometime I think in the 160s or 150s before Jesus, कम से कम 150 से 160 कबल मसीह के आने से पहले there were some Jewish people called the Maccabees, and they led a revolt against the Greek powers. और उस वक्त एक वहां पे फिरका नजर आया जिसे मकाबी कहा गया है, जिन्होंने रोमी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। And so once they cleansed the temple, because the Greeks had defiled the temple, और जब उन्होंने हैकल की तकदीस की, क्योंकि यूनानियों ने वहां पर उस हैकल को, यहूदी हैकल को नापाक कर दिया था, they went to light a candle again. और वो तब दोबारा से उन्होंने मोमबत्ती जलाने का फैसला किया।
To light the candle means it represents God's everlasting presence with his people. ये मोमबत्ती का या रोशनी का होना ये खुदा का अहद जो बनी नौ इंसान के साथ या खास तौर पर यहूदियों के साथ है उसकी ये दलील है या अक्कासी है। But you have to have a special oil to light the fire with. मगर इसके लिए आपके पास एक खास एक तेल है वो होना चाहिए। आई गॉट इट रॉन्ग, इट्स हानिका, राइट? Hanukkah. या तो हानिका की जो ईद है उर्दू में से कहा गया ईद तजदीद, जिससे हैकल को साफ जब किया गया तब ये मनाई गई थी। सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई थी जी। या But they only had enough oil for one night. मगर उनके पास जो तेल मौजूद होता वो सिर्फ एक रात के लिए होता था। But a miracle happened. मगर एक मौजज़ा हुआ। The oil lasted for 8 days. मगर वो तेल 8 दिन तक उनके पास रहा। The significance of that is it allowed them enough time to produce enough batch of holy oil. इसका ये फायदा हुआ कि जब वो 8 दिन तेल 8 दिन उस तेल ने निकाल दिए, उनके पास इतना वक्त था कि जनाब वो बैठकर और ज्यादा तेल को बनाए ताकि ताकि उनके पास ज्यादा तेल मौजूद हो और ये मोमबत्तियां जलती रहें। So that's why you have 8 candles. और इसीलिए 8 उनके पास मोमबत्तियां होती हैं। Well, John 10:22 tells us that Jesus celebrated Hanukkah. और यूहन्ना की इंजील में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने ईद तजदीद को मनाया। In the Bible, it's known as the Feast of Dedication. और इस ईद को हम ईद तजदीद भी कहते हैं, डेडिकेशन यानी सफाई की या तकदीस की ईद भी कहा जाता है। You can go to the next slide. ये अगली ईद देखिएगा। See, this is a celebration of the Feast of Booths. अब ये जो ईद है जिसको मैंने पीछे नाम लेते हैं झोंपड़ियों की ईद, तो ये झोंपड़ियों की ईद है। So it's remembering when they dwelled in the desert after God had brought them out of Egypt and they lived in these booths for 40 years. ये यीशु मसीह जब खुदा ने मुल्के मिस्र से बनी इसराइल को निकाला तो वो 40 साल तक बियाबानी सफर में रहे और वो झोंपड़ियों में रहे। इसलिए इस ईद को मनाया जाता है उस याद के तौर पे कि किस तरह से खुदा उनके साथ रहा और वो किस तरह से झोंपड़ियों में रहा करते थे। They also celebrate Purim. वो ईद पुरीम को भी मनाते हैं। You'll find this celebration at the end of the book of Esther as it celebrates God's deliverance from the wicked Haman. जब आप आस्तर की किताब का अख्ताम पढ़ते हैं तो किस तरह से खुदा ने हमान के जंगलों से, हमान के हथकंडों से खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को आज़ाद किया। ये उसके ईद पुरीम उसके याद में हम मनाते हैं या वो मनाते हैं। So for Messianic Jews, they are remembering all of God's mighty deeds and they're saying, God has been faithful all these years because look, Jewish people like me still exist. और सब कुछ जो कह रहे हैं इसलिए मसीहानिक यहूदी ये कहते हैं कि देखो जी खुदा ने ये सब बातें की हैं इसलिए हम मौजूद हैं। And by saying, and we recognize the Messiah, they're saying, and God has not lied to us. He did send us a savior. He did send his Messiah. वो कहते हैं कि खुदा झूठा नहीं है, उसने वाकई हमारे लिए एक निजात दहिंदा को भेजा। And you can see this is powerful. This is the meaning of these festivals, is to celebrate that God was faithful yesterday and he's going to be faithful today. और ये इस बात की वो भी इस बात के मानते हैं, हम इस बात के मानते हैं कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी वफादार था, आज भी वफादार है। That's beautiful for us to remember as well. और ये हमारे लिए भी निहायत ही खुशगवार बात है कि हम इसे याद रखें। You can go to the next slide. जी अगली स्लाइड देखें जी। Now this is called a tefillin. Tefillin, इसको टेथिलन कहा जाता है, also known as a phylactery. इसको फिलैक्ट्री भी कहा। आई डोंट हैव टर्मिनोलॉजीज। Look at the box on the head, and there's also another one on the hand. और आप ये डब्बों को देखिए जो सर पर है और उसके बाद उनके कलाइयों पर भी है, हाथों पर भी है। In those boxes are little pieces of paper with God's word. इन बॉक्सेस में छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन पे खुदा का कलाम लिखा हुआ है। Messianic Jews wear them to remind them to connect their thoughts and their actions to God. और ये इसलिए करते हैं कि खुदा ताकि ये अपने ख्यालात और अपना रद्द अमल खुदा के साथ मिला सकें।
So this practice and the next one, you go to the next one, ये अगली अगली प्रैक्टिस देखें। is their way to live out Deuteronomy 6. वो चाहते हैं कि वो अस्तिस्ना 6 में अपनी जिंदगी बसर करें। This is a mezuzah. ये एक मजूज है, इज दिस एन इंस्ट्रूमेंट राइट? या ये एक मजूज है, एक साज है। So inside of it are pieces of paper that have a verse from the Torah. और इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें तौरात की आयात मौजूद है। And in fulfillment of Deuteronomy 6:9, और अस्तिस्ना 6 बाब की फुलफिलमेंट के मुताबिक they nail it to their door frames. ये अपने दरवाजों के आगे इसको लगाते हैं। And it represents God's closeness to us. और ये खुदा की जो यगानगत है अपने लोगों के साथ, उसकी निशानदेही करती है। Okay, so let me talk to you about what is the mission of Messianic Jews. अब इनका मिशन क्या है इन मसीहानिक यहूदियों का? Is to reach Jews. उनका ये मिशन है कि वो यहूदियों तक रसाई हासिल करें। They plant their synagogues in Jewish communities. वो इबादत खानों को यहूदी कम्युनिटीज के दरमियान ही लगाते हैं। They're trying to fill in the gap between Jews and the Messiah. वो एक जो खला है यहूदी और मसीह में, उसको ये पूरा करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। Their goal is to be 100% Jewish and 100% Messianic. उनका ये मानना है, कहना है कि वो 100% यहूदी हो, 100% मसीही भी हो। And they also want to remind Christians like us of the Jewish roots of our beliefs. और वो इवन के मसीहियों को भी ये सिखाना चाहते हैं कि जनाब आपको अपनी यहूदी बुनियादों को जांचना है, समझना है। Now, here's our second to last section. और ये हमारा आखिरी सेशन, जो सेकंड लास्ट सेशन है, वो है। So I'm wrapping up here. तो मैं यहाँ पर इसको खत्म करने लगा। So here are some critics of Messianic Judaism. अब यहाँ पर कुछ तनाकीद या तनकीदें जो इनके खिलाफ है, वो मैं आपको शेयर करने लगा। Because some Messianic Jews will say, we are Jews for Jesus. क्योंकि कुछ मसीही यहूदी कहते हैं कि हम यहूदी हैं मसीह के लिए। And critics will say, Jews for Jesus is like Christians for Buddha or kosher pork. That makes sense. तो वो कहते हैं अगर आप जनाब यहूदी हैं मसीह के लिए, फिर ऐसा है, फिर हमें ऐसा लगता है फिर कि क्रिश्चियंस जो हैं मसीही वो ऐसे हैं कि वो सूअर भी खा सकते हैं और कोशर फूड्स भी खा। Jews say that Messianic Jews are deceptive in their terminology. वो जो मसीहानिक ज्यूज हैं वो डिसेप्टिव है, यानी धोखा देते हैं अपनी इस्तिलाहात में। They say you use the term Messiah, not Christ. वो कहते हैं कि आप लफ्ज मसीहा इस्तेमाल करें, जो कि मसाया है, ख्रिस्तस यानी क्राइस्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। Synagogue, not church. वो कहते हैं कि आप चर्च ना कहें, आप इबादत खाना सिनेगॉग कहें। Yeshua, not Jesus. वो कहते हैं आप यशुआ कहें, यस्सु ना कहें। And they believe that the Messianic Jews' participation in Passover, Purim, Hanukkah, Jewish festivals is deceptive. और ये कहते हैं कि जनाब हमें इन सारे जितने भी त्योहार हैं उनमें भाग लेना जरूरी है। They believe that the New Testament's application of the Old Testament are taken out of context. वो कहते हैं कि नए अहदनामे की क्या तलाक पुराने अहदनामे के पस मंजर के मुताबिक उसके पस मंजर को बगैर समझे हुए उसका इतलाक किया जाता है। For instance, मिसाल के तौर पे Christians and Messianic Jews interpret Isaiah 53, the suffering servant, as Jesus. अब मसीही और यहूदी मसीही यशायाह 53 बाब को गम उठाने वाला या मद्दे गमनाक के तौर पर वो पेश करते हैं और वो उस बात पे ईमान रखते हैं कि ये मसीह के मुतल्लिक कहा गया है। Jews say that Isaiah 53 is about Israel collectively being the suffering servant. यहूदी कहते हैं कि यशायाह 53 बाब इसराइल के मुतल्लिक है सिर्फ। And at least here in America, Messianic Jews have met with a lot of resistance from the Jewish community. अमेरिका में खास तौर पे मसीहानिक यहूदियों को यहूदी कम्युनिटी से बड़ी रेजिस्टेंस का सामना है। Jews have protested Messianic Jewish gatherings. यहूदी लोगों ने मसीहाई यहूदियों के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट्स किए हैं।
They have written counter missionary books to push back against Messianic outreach. उन्होंने बड़ी बड़ी किताबों को लिखा है ताकि वो इनके मिशनरी काम को खत्म कर सकें। So, in a sense, you see that just as many Jews rejected Jesus in the first century, they reject him now. और जिस तरह से बहुत से लोगों ने मसीह को पहली सदी में इनकार किया या मसीहत का इनकार किया, आज भी बहुत से लोग करते हैं। So, here's just a closing remark. तो यहाँ पर एक आपके लिए आखिरी एक कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। I know you have some English speakers. Are there any people, does anybody read English? आप में से मुझे पता है कि कुछ अंग्रेजी बोल लेते हैं। आप इंग्लिश में सिस्टर सहर, आपका इंटरनेट ठीक आ रहा है? If not, no. Yes, sir. Okay, yeah. She can speak in English. Yeah. Okay, there's a that I sent you a link. Yeah. Email. I just want to put that link in here. You want me to share that? Yes. So we're just putting a link in here for an English reader. So sorry for all the Urdu readers. My bad. I just only have access to this in English. No worries. अभी हम There's आपके the link लिए right there. this one. Yeah. Okay. तो ये अभी आपके लिए मैं एक लिंक को ओपन कर रहा हूँ और ये आपने भी देखना है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही शेयर करता हूँ। Okay. Stop sharing this one. Start sharing this one. I think you just link into the chat box. Yeah, they can see that. Yeah, I've already shared that in the group. Okay, Yeah. my bad. Sorry. No worries. All right. So what I'm sharing with you, this is Josephus was a Jewish historian in the first century. ये आप देख सकते हैं कि ये जो जोसेफस है, ये एक यहूदी तारीख निगार था। And he wrote a description about Jesus and Jesus' followers in about 94 AD. इसने कम से कम 94 ईस्वी में उसने तारीख वगैरह को लिखा। This is the earliest non-Christian account of Jesus. ये उसके हमारे पास सबसे जो पुराना है वो हमारे पास अकाउंट है। So some scholars have said this is a forgery. Josephus didn't write this. वो कुछ कहते हैं जी ये योसेफस ने नहीं लिखा, because Josephus says some things about Jesus that they believe a Jew never would say. और क्योंकि वो कहते हैं योसेफस ने मसीह के मुतालिक वो लिखा जो ये यहूदी कभी नहीं कहेगा। They think it was too positive about Jesus. वो कहते हैं कि वो यीशु को लेके बड़ा एक मुस्बत राय रखता था। And that it was written 60 years after Jesus, so it's not accurate anyway. So वो यीशु मसीह के 60 सालों के बाद लिखा गया, तो ये तारीखी तौर पर या ऑथेंटिक या सही नहीं होगा, ये गलत है। So this link I've just shared with you is an open access book. ये मैंने आपको एक लिंक शेयर किया, मैंने आपको ग्रुप में भेजा। ये एक ओपन किताब है। Anybody can read it. और आप में से कोई भी इसको पढ़ सकता है। And this scholar contends that Josephus' testimony about Jesus really came from Josephus and is accurate. और वो ये जो स्कॉलर की किताब आपको भेजी है, ये इस बात की दलील है कि योसेफस ने जो लिखा है वो सही लिखा है। But I share this right now with you because it was an encouragement to my faith, and I hope it'll be encouragement to you. मैंने आपके साथ ये शेयर इसलिए किया है क्योंकि ये मेरे ईमान के लिए हौसला अफजाई थी और मैं मानता हूँ कि आपके ईमान के लिए भी ये हौसला अफजाई होगी। Can you scroll up just a Yeah. little bit? Oh, other way, sorry. Go up. Stop right there. Okay. So if you can't read English, you'll see this right here, but I'll just tell you what it is. आप ये इंग्लिश में ये देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ा क्या है। या ग्रीक में। If you read like Shalim here. है ना? So here's what Josephus is saying. और ये योसेफस कह रहा है यहाँ पर। Here's some things to know about him. He knew people who were at Jesus' trial. उसने उन लोगों के बारे में लिखा और उन लोगों को जानता था जिन्होंने यीशु मसीह पर सियासत की। He knew people who were at Peter, Paul, James, and John's trials. और उसने वो उन लोगों को भी जानता था कि जिन्होंने यीशु मसीह के हवारियों पर भी सियासतें की। What that means is the information he has is accurate. इसका क्या मतलब है कि जो कुछ यूसेफस ने लिखा है, जो इंफॉर्मेशन उसके पास है, वो बिल्कुल जामिया और वाज़े है। And what it's revealing is this is what Messianic Jews believed as early as
possibly the third day after Jesus was dead. और कम से कम ये तीसरे दिन जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह वफात पा गए तब ये कम से कम लिख दिए गए थे। The reason I'm sharing this with you is because some people, scholars, it could be other people like Muslims or anybody, might say Jesus was just a man. He didn't do any miracles. The fact that people say he did miracles, he rose from the dead, people added that way later. कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक सादा इंसान था, ये जो यीशु मसीह के मौजज़ात हैं, वाक़यात हैं, ये बड़ी देर बाद में लिखे गए। But here's what Josephus, a Jewish historian, said about Jesus. लेकिन ये देखें कि यूसिफस जो कि एक यहूदी तारीख निगार था, उसने क्या लिखा है? They say Jesus the Christ, the Messiah. वो कहते हैं यीशु मसीह है। They say he was a wise man, if you can call him a man. वो एक दाना शख्स था अगर आप उसे एक शख्स मानते हैं। His disciples saw him alive again, उसके शागिर्दों ने उसे जी उठे हुए भी देखा, meaning he really died. इसका मतलब वो वाकई में मुआ था। This is important living in a Muslim country where they say Jesus never died. Allah just made it look like he died. मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, पस मंज़र में रहते हुए हमें इस बात पर ईमान रखना है, क्योंकि वो उनका मानना है कि वो कभी मरे नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने किसी और को उसकी जगह पे मार दिया, लेकिन ऐसा एक तारीख निगार नहीं कह रहा। And Josephus describes Jesus as a man who did miracles. और उसने ये कहा कि यीशु वो शख्स था जिसने बहुत से मौजज़ात भी किए। And finally, he mentions the fact, he references the resurrection by saying the disciples saw him alive again on the third day. और उसने वो इस चीज़ को लिखता है कि उसके शागिर्दों ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हुए देखा। So again, what this means is possibly as early as the third day, on the day that Jesus resurrected, we have Messianic Jews. और इसीलिए वो कहते हैं मसीहानिक यहूदी के तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे, वहां पे मसीहानिक यहूदी आ गए। And what it also means is what we believe was believed on by the third day, upon the day of Jesus' resurrection. और हम भी तीसरे दिन यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक उस पर ईमान भी हम भी रखते हैं। Is it? सो ये था सब कुछ। सो आई होप कि आप सब ने बड़ी बरकत पाई है इस सेशन के वसीला से भी।